Hello friend, today we will discuss about the game theory in operation research. In this video, first we discuss on game theory and then see some important definition and example of game theory. Now first, what is the game theory? Game theory is a type of decision variable. The aim of game is to win it by selecting source of action or strategies. The mathematical analysis of game theory is based on the minimax or maximum principle. Each player will be act to maximize his minimum gain or minimize his maximum loss. Now see some important definition. First definition, player. Each participant is called as the player. Second definition, strategy. The decision rule by which a player determines his source of action is called strategy. Two types of strategy, pure strategy and mixed strategy. First is pure strategy. The pure strategy, if a player decides to use only one course of action, is called as a pure strategy. Next definition, mixed strategy. Mixed strategy, if a player decides in advance to use all or some of his source of action, is called as mixed strategy. Next definition is payoff. Payoff, the outcome of playing the game is called payoff. The payoff matrix, the outcome of playing the game in the form of matrix is called as payoff matrix. Next definition, two-person zero-sum game. A game with two players where gain of one player is equal to the loss of other player is called as two-person zero-sum game. Next definition, maximin. Important is maximin, minimax definition. First, maximin definition. Maximum definition, the maximum element among the minimum elements selected for each row is called as maximin. Next definition, minimax, the minimum element among the maximum elements selected for each column is called as minimax. Next definition, stable game. If minimax and maximin is equal, then it is called as a stable game. Next definition is saddle point. Saddle point, the position in the matrix. जो भी पे ऑफ मैट्रिक्स होगा उसमें पोजीशन. सर सैडल पॉइंट की डेफिनेशन है द पोजीशन इन द मैट्रिक्स वेयर मिनिमैक्स इक्वल्स टू मैक्सिमिन. एंड लास्ट डेफिनेशन, फेयर गेम. द वैल्यू ऑफ गेम इज 0, देन इट इज कॉल्ड एज द फेयर गेम. इंपॉर्टेंट, मैक्सिमिन और मिनिमैक्स. मैक्सिमिन और मिनिमैक्स स्टेबल गेम, दोनों इक्वल हो तो उसको बोलेंगे स्टेबल गेम. सैडल पॉइंट आपको पोजीशन फाइंड करनी है इन द मैट्रिक्स वेयर मिनिमैक्स और मैक्सिमिन आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. और वैल्यू गेम की वैल्यू अगर 0 आ गई तो उसको बोलेंगे फेयर गेम. अब आपकी गेम, कोई भी गेम हो उसको सॉल्व करना है तो टू टाइप से सॉल्व करेंगे. two-person zero-sum game with saddle point and second two-person zero-sum game without saddle पॉइंट. तो फर्स्ट हम देखेंगे two-person zero-sum गेम में विद सैडल पॉइंट कैसे सॉल्व करते हैं एंड विदाउट सैडल पॉइंट से कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट अभी हमने जो भी डेफिनेशन देखे उसमें फॉर एग्जांपल आपको ये गेम दिया है तो इस गेम में आपके प्लेयर कितने, तो प्लेयर ए एंड प्लेयर बी. ए प्लेयर कितनी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. बी प्लेयर कितने स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं आपके फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. जो भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है इसको क्या बोलेंगे, पे ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे. और जो भी एलिमेंट लिखे ये क्या आपके गेम के आउटकम से, इसको क्या बोलेंगे, पे ऑफ. अब हमारे डेफिनेशन हो गए. अब हम एग्जाम्पल देखेंगे. तो फर्स्ट हम एग्जाम्पल देखने वाले two-person zero-sum गेम विथ सैडल पॉइंट और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे two-person zero-sum गेम विदाउट सैडल पॉइंट. नाउ क्वेश्चन, फाइंड द सैडल पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ गेम ऑफ द फॉलोइंग गेम. अब जो भी गेम दिया उसकी आपको सैडल पॉइंट फाइंड करना है एंड वैल्यू फाइंड करनी है इस गेम की. तो यहाँ पे प्लेयर है, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी. प्लेयर ए यूज कर रहा है आपके 4 स्ट्रैटेजी, प्लेयर बी यूज कर रहा है 5 स्ट्रैटेजी आपका पे ऑफ मैट्रिक्स है. तो आपको क्या फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है सैडल पॉइंट. तो सैडल पॉइंट two-person zero-sum गेम विदाउट सैडल पॉइंट. सैडल पॉइंट आपका एग्जिस्ट होना चाहिए. वो कैसे करेंगे, तो जो भी आपको गिवन दिया है गेम वो कंसिडर कर लेंगे. कंसिडर द गिवन पे ऑफ मैट्रिक्स. जो भी आपको गेम दिया है वो हमने कंसिडर कर लिया. अब गेम कंसिडर करने के बाद आपको क्या फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है सैडल पॉइंट. तो सैडल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इफ आपका मैक्सिमिन इक्वल्स टू मिनिमैक्स हो तो उसको क्या बोलेंगे, सैडल
पॉइंट। तो मैक्सिमिन और मिनिमैक्स आपका इक्वल हो तो उसको बोलेंगे सैडल पॉइंट। तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो आपको फाइंड करना है मैक्सिमिन एंड मिनी मैक्स। आपको फाइंड करना है मैक्सिमिन और मिनी मैक्स। तो मैक्सिमिन किसके लिए फाइंड करना है, हमने डेफिनेशन देखी, मैक्सिमिन फाइंड करेंगे रो के लिए एंड मिनी मैक्स फाइंड करेंगे कॉलम के लिए। अब मैक्सिमिन फाइंड करेंगे रो के लिए, तो रो में कैसे फाइंड करना है, तो हर रो में से आपको सिलेक्ट करना है मिनिमम एलिमेंट। फर्स्ट रो में जाएंगे, फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, तो फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट है 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। नेक्स्ट सेकेंड रो में मिनिमम एलिमेंट क्या है, सेकेंड रो में मिनिमम एलिमेंट है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। थर्ड में मिनिमम एलिमेंट क्या है, 2 4 3 3 8, इसमें मिनिमम एलिमेंट है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। फोर्थ में आपका मिनिमम एलिमेंट क्या है, फोर्थ में आपका 1 है। तो ये हो गया आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमिन। पर मैक्सिमिन में सबसे पहले क्या करना है, हर रो में से मिनिमम एलिमेंट आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लिख देंगे। अब जो भी एलिमेंट लिखे उसमें से आपको मैक्सिमम सिलेक्ट करना है और जो भी मैक्सिमम होगा उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमिन। तो आपका मैक्सिमम क्या है, 0 4 2 और 1 में मैक्सिमम है 4, तो ये क्या हुआ आपका मैक्सिमिन। ओके, अब सिमिलरली आपको फाइंड करना है मिनीमैक्स। मिनीमैक्स किसके लिए फाइंड करेंगे, तो मिनीमैक्स फाइंड करेंगे कॉलम के लिए। अब मिनीमैक्स से मतलब कॉलम में से सिलेक्ट करेंगे मैक्सिमम नंबर। अब फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम नंबर क्या है, 9, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 9। सेकेंड कॉलम में मैक्सिमम नंबर क्या है आपका, सेकेंड कॉलम में मैक्सिमम नंबर 6। थर्ड कॉलम में मैक्सिमम नंबर है 4। फोर्थ कॉलम में मैक्सिमम नंबर है आपका 8 एंड लास्ट कॉलम में मैक्सिमम नंबर है 8। अब आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, मिनी मैक्स। अब मिनिमम एलिमेंट तो आपने फाइंड कर लिए, उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर रहे, उसमें से मिनिमम सिलेक्ट करना है। अब इसमें मिनिमम क्या है, 9 6 4 8 8, इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या है आपका 4, तो ये हो गया आपका मिनी मैक्स। ओके, तो अब हमने फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमिन और मिनीमैक्स एलिमेंट। अगर आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड द सैडल पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ गेम, तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे मिनीमैक्स और मैक्सिमिन एलिमेंट। मिनीमैक्स और मैक्सिमिन एलिमेंट, तो आपको सैडल पॉइंट कैसे मिलता है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन देखेंगे। अब ये मैक्सिमिन कहाँ पे आपका सेकेंड स्ट्रेटेजी के लिए, और ये कहाँ पे, इनका इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो ये 0.4। तो ये क्या आपका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट हो रहा है, तो सैडल पॉइंट कहाँ पे होगा, और मिनीमैक्स और मैक्सिमिन इक्वल है या ना, वो सबसे पहले चेक करेंगे। आपका मैक्सिमिन आ गया है 4 और मिनीमैक्स आ गया है 4। हेयर मिनीमैक्स इक्वल टू मैक्सिमिन इक्वल्स टू 4। अगर ये इक्वल टू हो तो आपका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट होगा, अगर इक्वल टू ना हो तो आपका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होगा। ये दोनों मैक्सिमिन और मिनीमैक्स इक्वल है, इसलिए आपका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट हुआ। पर सैडल पॉइंट कौन से पोजीशन पे, तो ये आपकी सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, इसलिए 2,3 पोजीशन पे आपका क्या है, सैडल पॉइंट है। अब आपको वैल्यू ऑफ द गेम लिखनी है, तो वैल्यू ऑफ गेम क्या हो गया आपका, मिनिमैक्स और मैक्सिमिन कहाँ पे इक्वल है, उनका इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो क्या रहेगी आपकी वैल्यू ऑफ गेम। अब वैल्यू ऑफ गेम है आपकी 4, वैल्यू ऑफ गेम इज 4। नेक्स्ट हम और लिख देंगे ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करेगा फॉर प्लेयर ए और प्लेयर बी। तो ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए, तो प्लेयर कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेगा, तो प्लेयर स्ट्रेटेजी यूज करेगा आपकी सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिला है, सेकेंड रो में। तो प्लेयर ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर इज सेकेंड। और प्लेयर बी के लिए, फॉर प्लेयर बी कौन सा मिनिमैक्स कहाँ पे है आपका, थर्ड कॉलम में, इसलिए फॉर प्लेयर बी इज थर्ड। ये क्या होगी आपकी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी। Thank you.